السلام علیکم لبراز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک طرز کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ 2022 میں، جہاں بہت سارے اچھے سیزنز آئیں گے جو آپ کی عزت، وقار، پرسنالٹی، منی میکنگ میں رول ادا کریں گے. وہاں کچھ سیزنز ایسے بھی ہیں جو آپ کے لیے ٹائم ٹیسٹ کا بیہیو کریں گے. کچھ ایسے سیزنز ہوں گے جو خزاں کا بیہیو کریں گے اور آپ کی کسی نہ کسی ایک فیلڈ آف لائف کو فیول لیس کر دیں گے یا آپ کے لیے آزمائشیں پیدا کریں گے. وہ کون کون سے سیزن ہیں تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں. ایز اے لبرا، آپ کا رولنگ پلانٹ وینس اس سال ایک ہی دفعہ ریٹروگریڈ ہوگا اور صرف جنوری میں ریٹروگریڈ ہوگا. 19 دسمبر سے ریٹروگریڈ ہوا ہے، 28 جنوری تک ریٹروگریڈ رہے گا. 28 جنوری کے بعد پھر وہ تھرو آؤٹ دا ایئر کبھی ریٹروگریڈ نہیں ہوگا. سو آپ کو آپ کی پرسنالٹی میں اور آپ کو اپنے لاسز میں جو ایک خزاں کا فیز دیکھنا ہے، لاسز یا لائبلٹیز یا جو انسلٹس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ صرف پہلے مہینے ایکسپیکٹڈ ہیں اینڈ اس کے بعد یو آر گوئنگ گڈ. سو دا بیڈ فیز یا کمزور سیزن بائی یور اون رولنگ پلانٹ وہ صرف پہلے مہینے. بٹ مرکری آپ کا اچھا خاصا امتحان لینے والا ہے لبراز. مرکری اس سال 3 مہینے 3 دفعہ مختلف ٹائموں پر ریٹروگریڈ ہوگا. مرکری جب بھی ریٹروگریڈ ہوتا ہے تعلیمی سرگرمیوں میں کمزوری آتی. مرکری ریٹروگریڈ ہو تو آپ کی جو میجیکل امپیکٹ آف کمیونیکیشن تھا وہ کمزور پڑے گا. مرکری جب کمزور ہو آپ کا پبلک امیج نیچے جاتا ہے. مرکری جب بھی کمزور ہو آپ کی پلاننگز میں کانسنٹریشن اینڈ ایکوریسی نہیں رہے گی. مرکری کی ویکنیس ہمیشہ ذہنی انتشار کی وجہ بنتی ہے اور وہ آپ کے لیے ویک ہوگا سال میں 3 مہینے. پہلی دفعہ وہ ویک ہوگا 14 جنوری سے اور وہ تقریباً 4 فروری تک ویک رہے گا، تو ایک 20-22 دن کا ٹائم یہ ہوگا. دوسری دفعہ وہ ویک ہوگا آپ کے لیے 10 مئی سے اور وہ پھر 3 جون تک 20-22 دن اس وقت کمزور رہے گا. آپ کی صلاحیتوں کو آزمائے گا، آپ کی کمیونیکیشن کو آزمائے گا، آپ کی پلاننگ کو، آپ کی مائنڈ اسٹرینتھ کو آزمائے گا. تیسری دفعہ پھر ریٹروگریڈ ہوگا وہ 10 سپٹمبر سے اینڈ 2 اکتوبر تک، 2 اکتوبر تک وہ ریٹروگریڈ رہے گا. ان تینوں سیزنز میں آپ اپنے مائنڈ کو الجھتا ہوا، دشمنوں کے لیگ پلرز کی مخالفتوں کو سہتے ہوئے یہ 3 مہینے گزریں گے. چھپی ہوئی سازشیں آپ کے آڑے آئیں گی. ایٹ دیٹ ٹائم آپ جب لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں گے فار اینی ٹائپ آف کمیونیکیشن، لائک اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھنا ہے، اپنے کوئی حق مانگنا ہے، اپنا کوئی جواز پیش کرنا ہے، وہ سب کمزور پڑے گا. اینڈ ہائر ایجوکیشن والوں کو ان 3 مہینوں میں اپنا کوئی ایگزام ڈیٹ نہیں لینی چاہیے. ایٹ دیٹ ٹائم یو فیل دا بلینکنیس ان یور مائنڈ، کانسنٹریشن بھی ڈکریز ہوگی. ایک اور پلانٹ ہے جو ریٹروگریڈ ہے، وینس اور مرکری کا میں نے بیان کر دیا. اب مارس کی باری ہے. مارس کافی امپورٹنٹ پلانٹ ہے آپ کے لیے لبرا. یہ آپ کے 2nd ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، یہ آپ کے لیے 7th ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے. مارس جب بھی اچھا ہو پراپرٹی میں فائدے ہوتے ہیں لبرا کو. مارس جب بھی اچھا ہو دوستیوں میں سے فائدے ہوتے ہیں لبرا کو. مارس جب بھی اچھا ہو لبراز کمپٹیشنز کو جیتتے ہیں. مارس جب بھی اچھا ہو لبرا کی بریوری میں اضافہ ہوتا ہے. مارس جب بھی اچھا ہو لبرا کے ہاں جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری پازیٹیو پروفٹس جنریٹ کرتے ہیں. پہلے 10 مہینے مارس اچھا رہے گا، بٹ 30 اکتوبر کو مارس ریٹروگریڈ ہو جائے گا اور پھر دوبارہ 2022 میں ڈائریکٹ نہیں ہوگا، پھر 2023 میں جا کر جنوری کے مڈ میں ڈائریکٹ ہوگا. مارس اگر ریٹروگریڈ ہوا تو صرف مالی نقصانات کا خدشہ جنم نہیں لے گا، بلکہ رشتہ داری کے پرابلمیٹک ہونے کے خدشات بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. مارس آپ کے 7th ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے. شادی کا ڈیلے ہونا اکتوبر کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے. اگر آپ نے اکتوبر سے پہلے لائف پارٹنرشپ کو مکمل نہ کیا تو اکتوبر کے بعد اس بات کے چانسز ہیں کہ بائی دا ریٹروگریشن سیزن آف مارس لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز ڈیلے ہو جائیں، یا پھر ڈیلے تو نہ ہوں لیکن جو کنیکشن بنے وہ بڑا ہی نومینل سا، کمزور سا، درمیانہ سا کنیکشن بنے.
मार्स की वजह से सिर्फ रोमानवी ही कामयाबियों में कमज़ोरी नहीं आती जब वो रेट्रोग्रेड होता है, बल्कि जो लोग ऑलरेडी कपल परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान भी झोल पैदा होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के लिए ज़हनी इंतशार की वजह से मोहब्बत कम होने लगती है। जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह से एक दूसरों की ज़रूरत महसूस होना कम होने लगती है। ये प्रॉब्लम्स अलग से पैदा होती हैं। ये 3 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स थे, मरकरी के सीज़न बयान कर दिए, वीनस के सीज़न एंड मार्स के। अब 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जो लंबे टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होंगे। उनमें से पहला है जुपिटर, 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लकी फैक्टर्स को जन्म देता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसकी ड्यूटी है कि ये आपके विजडम को क्रिएट करता है। इसकी ड्यूटी है कि ये हर चीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसे इन्हेंस कर देता है। ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा 28 जुलाई को। मतलब जो इन्हेंसमेंट थी, आपकी कुर्बानी देने का जज्बा, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी अपने कोलीग्स के साथ कनेक्शंस, आपकी अपनी फैमिली, अपने सराउंडिंग के साथ कनेक्शंस, ये कमज़ोर पड़ेंगे। इसकी कमज़ोरी आपको एक ऐसी ख़िज़ा में ले जाएगी कि जहां आपका स्ट्रगल लेवल बढ़ जाएगा एंड रिवॉर्ड लेवल कम हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लकी फैक्टर्स चाहिए तो आपको 28 जुलाई से पहले पहले उन चीज़ों की प्लानिंग करनी चाहिए। 28 जुलाई के बाद फिर 23 नवंबर तक ऐसा टाइम रहेगा जब लक फैक्टर जो खुलकर बड़ी कामयाबियां मुफ्त में ईजी एंड सिल्की वे में आपको दे सकती थी वो नहीं देंगी। फिर आखिरी लॉन्ग टर्म प्लैनेट, आखिरी प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड होगा वो सैटर्न है। सैटर्न आपकी कंफर्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, सैटर्न आपकी लग्जरी का रिप्रेजेंटेटिव है, सैटर्न आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है, सैटर्न आपके लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। जब तक वो डायरेक्ट है 4 जून तक, तब तक आप लग्जूरियस हैं, कंफर्टेबल लाइफ गुजारने के कैंडिडेट हैं। घर बदलने या घर बड़ा करने, लग्जूरियस, एक्सपेंसिव या लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन के लिए आप कैंडिडेट हैं। बट 4 जून के बाद, 6ठे महीने की 4 तारीख के बाद फिर ये रेट्रोग्रेड होगा और इसकी रेट्रोग्रेशन आपकी ये अवेलेबल फैसिलिटीज़ को डंप करेगी, रोकेगी या रिवर्स कर देगी। जो हासिल भी कर लिया होगा या तो वो भी हाथ से फिसलेगा, या फिर ये होगा कि हाथ से तो नहीं फिसलेगा लेकिन आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। इसकी वजह से आपको ज़हनी कमज़ोरी का सामना भी करना पड़ेगा। ख़दशात, खौफ ज़दा रहना, गुस्सा, मूड स्विंग्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी सैटर्न के इवज़ आया करती हैं। अब अगर आपने गौर किया हो लिब्रा, तो चाहे मरकरी की वजह से आपके माइंड एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन कमज़ोर हो तो ये भी एक ख़िज़ा या कमज़ोर सीज़न है। वीनस के इवज़ आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी में कमी आए तो ये भी सीज़न है, लेकिन इकट्ठे नहीं है। मरकरी और टाइम पर रेट्रोग्रेड है, वीनस और टाइम पर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न और टाइम पर रेट्रोग्रेड है, मार्स और दूसरे टाइम पर रेट्रोग्रेड है। लेकिन सभी चीज़ें किसी न किसी तरह आपको आजमा रही होंगी। अगर आपकी अपनी विल, अपनी स्किल्स पावरफुल हैं तो आप इन सब टाइम्स में से, इन सब ख़िज़ा के सीज़नों में से आराम से गुजर जाएंगे और अपनी कामयाबियों का मोमेंटम टूटने नहीं देंगे। एंड यू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा। बट अगर कहीं आपने कमज़ोरी दिखाई मोहब्बत की ज़िंदगी में, कहीं कमज़ोरी दिखाई कम्युनिकेशन में, कहीं कमज़ोरी दिखाई सेहत और तंदुरुस्ती में, कहीं कमज़ोरी दिखाई आपने डिसीजंस में, तो वो कमज़ोरियाँ सिर्फ डिसीजन, सेहत या मोहब्बत तक महदूद नहीं रहेंगी। जब आप किसी एक साइड पर पेनफुल होते हैं तो उसका खमियाजा आपको ज़िंदगी के हर शोबे में भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी एक शोबे को भी आप रद्द करके आगे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेहत में बहुत ख़राब सेहत लेकर चल रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मोहब्बत निभा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेंटली बिल्कुल अनप्रेजेंट हैं लेकिन फिर डिसीजन बड़े अच्छे ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपको मोहब्बत वाली साइड अगर इख्तियार करनी है तो उधर भी आपको जेन्युइन एंड स्ट्रॉन्ग प्रूव करना है। अगर आपको प्लान्स बनाने हैं तो उधर भी आपको जेन्युइन एंड स्ट्रॉन्ग प्रूव करना है। आपको अपनी लकी फैक्टर्स के लिए भी अपने आप को स्पिरिचुअल एंड स्ट्रॉन्ग प्रूव करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करिए ताकि आप टाइम से अच्छे फ़ायदे ले सकें। एंड टाइम मीन्स पूरा 2022 12 महीने का एक
पैकेट। खुद अच्छा रख जाएं, अच्छी बात है। खुद अच्छा नहीं रख पाते, बीइंग अ लिब्रा, रूबी पहनिए, ओपल पहनिए, येलो सफ़ायर पहनिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको बूस्ट अप करेंगे, जो आपके लिए कैटलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, काफ़ी होगा। बट दीज आर द जनरल रेमेडीज़ जो कोई भी कर सकता है। अगर कोई लिब्रा ऐसा है जिसको कुछ बड़ा करना है, अगर कोई लिब्रा ऐसा है जो पहले ये कर चुका है लेकिन खातर खा नताइज नहीं आए, उनको फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं लिब्रा। बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली अब तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आखिरी बात, जिसने टाइम को समझा उसने टाइम से पाया। जिसने टाइम को ना समझा या टाइम को इग्नोर किया, टाइम उसे इग्नोर ज़रूर करेगा। टाइम ऐसी चीज़ है जो साइलेंटली आपको तंग करेगी। अगर आप पैरेलल टू द नेचर नहीं हैं, ख़िज़ाओं को ख़िज़ा नहीं समझते, बहारों को बहार नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते या दिन को दिन नहीं समझते, तो कोई आके मारेगा नहीं आपको, बट वो पेनल्टीज़ ज़रूर देगा। मिसाल के तौर पर आप रातों में जागना शुरू कर दीजिए, जबकि ये नेचर के एंटी है, नेचर के पैरेलल नहीं है। कोई आके आपको कान से नहीं पकड़ेगा, आपको जागने देगा। बट थोड़े ही अरसे के बाद आपकी स्किन पर, आपके मैदे पर, आपकी मेंटालिटी पर, आपकी सक्सेसेस पर, आपके इमोशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। रात का जागना आपको ज़रूर तंग करेगा, चाहे 2 महीने बाद करे, चाहे 1 महीने बाद करे, तंग ज़रूर करेगा। और कुछ हड्डी नहीं टूटेगी, कोई खून नहीं रिसेगा, लेकिन तंगी शुरू हो जाएगी। सो जो नेचर के एंटी जाएगा, नेचर उसे पेनल्टी ज़रूर देगी। मिसाल, एक दूसरी मिसाल, सर्दियों में अगर आप बहुत बारीक से कपड़े, माइनस में सर्दियाँ चल रही हों, -1, तो आप नेचर को समझे बगैर उन सर्दियों में बगैर गर्म कपड़े पहने हुए बाहर निकले। अगर आप बड़े ताकतवर हैं तो 1 घंटा सर्वाइव कर जाएंगे, 2 घंटे कर जाएंगे, लेकिन वो रेडी है नेचर आपको पेनल्टी देने के लिए, आपको बीमार डालेगी ही डालेगी। आप तपती धूप में गर्म स्वेटर पहनकर बाहर निकल जाएं, पेनल्टी लगेगी आपको। सो टाइम को समझिए। बाहर आपकी सलाहियतों को निखारने के लिए है, कैश करने के लिए। ख़िज़ा आपको लेसन्स देने के लिए आती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को सही अंदाज से समझेंगे तो वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ड्यूटी पूरी हुई आपको ये सीज़न्स समझाने में कि कौन से सीज़न आपके लिए इम्तिहान या ख़िज़ा की वजह बनेंगे। उन इम्तिहानात में से पास कैसे होना है उसकी रेमेडी भी मैंने दे दी। अब आगे परफॉर्म आपने करना है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हुए रिवॉर्ड्स हासिल करें तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी टीम को भी याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। 2021 में आपने सब्सक्रिप्शन वाली इतनी मोहब्बत दी कि हम पाकिस्तान के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम के तौर पर ऊपर उभरे। 2022 में भी आपकी मोहब्बत इसी तरह जारी रही तो हमारी कामयाबियों का सफ़र तय होता रहेगा। अगले हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकल वीकली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।